Once again, a very sweet good morning to all of my dear friends and dear students, and welcome to the live classes Sugar School Balana. And these are your English classes, which are being provided by excellent Department of English Language, which is situated in Mahendragarh, Narmal Road, Court Road, Unise. And most welcome to these live classes. And you know that for last few days, these classes are being taught to you guys, and I hope that you are learning with the help of these classes. Some of the points have been taught to you, and some of the points have been explained to you, like that in previous classes you learned how to show the future action, how to show order, request, okay, and how to prohibit something, how to express the continuity of present, okay. Even you learn about compulsion and obligation, like that. Future action, I would like to revise once, and future action is shown in our first language by using some keys like ga, ge, and gi, okay. When we get in Hindi these things in end of sentence, then what do we have to use? We have to use special keys which are made for it, will and shall plus verb first one, okay. If we talk about future action, okay, except after that we learned about how to show order and request. Order and request you learned about like that. For that we had special key in Hindi, karo or mat karo, okay. Like for that, what did we use? We used here do or do not do, okay. For example, khelo, play, mat khelo, do not play. After that you learned about how to show continuity of present. For that, what was our first language key? कर रहा है और इनमें से रही है. Understood? What did we use for that? In second language in English we used is, am, are plus verb first plus ing. Like if we get in Hindi, अगर हमें हिंदी में मिलेगी कर रहा है, रही है, रहे हैं, खा रहा है, then what do we have to use? We have to use is, am, are plus verb first ing. According to requirement we have to use among these, okay. After that you learned in previous class, इससे पहले वाली क्लास में आपने सीखा था how to show compulsion and ऑब्लिगेशन. कंपल्शन को कैसे शो करते हैं? मैंने कहा था कंपल्शन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंपल्शन. प्रेजेंट कंपल्शन को कैसे शो करते हैं? वी हैव स्पेशल की फॉर दैट. व्हाट डू वी हैव टू यूज? इन हिंदी वी विल गेट सम कीज लाइक दैट. करना है या फिर करना पड़ता है. व्हाट डू वी यूज इन इंग्लिश? इन इंग्लिश वी हैव स्पेशल कीज हैव टू और has to plus verb first one. Understood? इसलिए to show compulsion, obligation of present. First thing is कि was करना है, करना पड़ता है. Understood? Today we will discuss about the special point which is used more than 80% in our daily routine. जो हम 80% से ज़्यादा use करते हैं, which is very important and we keep explaining every day. What is that? Obviously you have learned before it also. इससे पहले भी आप उसको सीख चुके हो. You have practiced many times, but the main use it was not told. वो नहीं बताया गया कि इसका use क्या है. Okay. Today we are learning about a point which is most important in our communication, in our conversation. और अगर हम बातचीत की बात करें तो हम एक दिन में लगभग 80% उसका यूज करते हैं. If we explain anything, if we talk about present, okay. Today we are going to learn about routine. Routine of present. आज हम किसके बारे में सीखेंगे? Routine, okay. किसकी routine? Present की routine. Understood? Past की भी routine होती है, okay. Future की भी होती है, but we are talking about the routine of present, okay. And this is our concept number 4th. First, second, third, fourth. This is fifth concept. ये हमारा fifth concept है. In this concept we are learning about routine. Routine सीख रहे हैं, okay. Routine किसकी? Present की. बेटा routine क्या होती है? हमारी दिनचर्या जो हम सुबह से स्टार्ट करते हैं और पूरा दिन चलता है, okay. That is every day. That is repeated every day. हर रोज हम रिपीट करते हैं, ओके. हर रोज की एक रूटीन होती है. फॉर एग्जांपल कि भी मैं सुबह 9 बजे स्कूल आता हूँ, उससे पहले आप बात करते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ.
फिर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। आई एम टेलिंग अबाउट माय रूटीन, ओके। फिर मैं ब्रश करता हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, सॉरी फिर नहाता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, ओके। फिर क्लास पढ़ाता हूँ, फिर लंच करता हूँ, फिर क्लास पढ़ाता हूँ, फिर घर आता हूँ, फिर इवनिंग वॉक के लिए जाता हूँ, फिर फ्रेंड्स के साथ घूमता हूँ, ओके। फिर एक्सरसाइज करता हूँ, फिर घर आता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। अंडरस्टूड? लाइक दिस इज रूटीन। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, होमवर्क करता हूँ, ब्रश करता हूँ, ओके, नहाता हूँ, तैयार होता हूँ, स्कूल जाता हूँ, क्लास अटेंड करता हूँ, लाइक दैट इज आवर रूटीन। क्या है? रूटीन। तो हम हिंदी में कैसे शो करते हैं रूटीन? वी शो रूटीन बाय यूजिंग सम स्पेशल कीज। क्या यूज करते हैं? फॉर दैट वी हैव सम स्पेशल कीज लाइक ता है, ती है, ते हैं, ता हूं और ती हूं। अंडरस्टूड? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। These are suffixes to show routine in Hindi. हिंदी में रूटीन को कैसे शो करते हैं? By using these things. जैसा मैंने आपको अभी बताया है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ओके, मैं मार्केट जाता हूँ, ओके, मैं खाना खाता हूँ, ओके, 2 चपाती खाता हूँ, अंडरस्टूड। क्रिकेट खेलता हूँ, ओके, 2 घंटे क्रिकेट खेलता हूँ, उसके बाद जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, लाइक दैट, ओके। ता हूँ और ती हूँ। ता है, ती है, ते हैं। लाइक पापा ऑफिस जाते हैं, ओके, पापा कार से जाते हैं, ओके, 9 बजे निकलते हैं, ओके, 11 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, ओके, 5 बजे ऑफिस से चलते हैं, ओके, और 6 बजे घर पहुंच जाते हैं, लाइक दिस। एनी रूटीन यू मे टॉक अबाउट दैट। तो रूटीन हमारी कैसे शो करते हैं हम? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती। अंडरस्टूड? अब इसके लिए अभी सभी को आता है कि हिंदी में कैसे एक्सप्रेस करना है, अभी मैंने बताया भी है आपको। नाउ वी विल लर्न हाउ टू एक्सप्रेस रूटीन इन इंग्लिश। रूटीन को हम इंग्लिश में कैसे शो करेंगे? हाउ डू वी शो रूटीन इन इंग्लिश? वेरी सिंपल बेटा। रूटीन को इंग्लिश में शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करेंगे। अंडरस्टूड? व्हाट विल वी यूज? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है? वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस। वर्ब फर्स्ट के साथ एस और ईएस लगा देंगे। अंडरस्टूड? और समवेयर वी हैव टू यूज दिस ओनली वर्ब फर्स्ट। कुछ एक जगह ऐसी हैं जहां हमें केवल वर्ब फर्स्ट यूज करना है, और कुछ एक जगह ऐसी हैं जहां हमें एस और ईएस भी लगाना है। नाउ पॉइंट इज दिस, एस को कहां यूज करेंगे और विदाउट एस कहां यूज करेंगे? दिस इज द डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है, बहुत ही बेसिक है। यू मे हैव लर्नड आल्सो, आपने पढ़ा भी होगा, बिकॉज़ कंटिन्यूअसली यू आर अटेंडिंग द क्लासेस and you are going to school also, so often your English teacher may have taught you these things, okay. So there is not any kind of confusion regarding it. I will make you clear this point. Where will we use just only verb first? Verb first कहाँ use करेंगे और s और es कहाँ लगाएंगे? Very simple, okay. There are some of the variations are this. कुछ एक वेरिएशन है जो हम फर्स्ट लैंग्वेज में शो करते हैं। किसके लिए क्या शो करते हैं? रूटीन, जिसको यूज करके, ओके। अब हम वर्ब फर्स्ट कहाँ यूज करेंगे? Point is this, verb first only कहाँ यूज करेंगे बेटा? We will use verb first if we talk about plural, जब हम plural की बात करते हैं। Understood? अगर हम plural की बात कर रहे हैं, okay, in that case we will talk just only, sorry, we will use verb first only. There will not be any kind of s, not es, okay. Neither we have to use s nor we have to use es if we talk about plural, means more than one, okay. Rest of the things, if we talk about he, she and singular with I, we, you,
दे एंड प्लूरल। जब हमें सेंटेंस में ये सब मिले, प्लूरल I, we, you and they, in that case we have to use just only verb first form। क्या यूज करेंगे? verb first form। remaining things जो इसके अलावा जो बची हैं like es, s और es कहाँ यूज करेंगे? very simple, s और es we have to use he, she, it and singular के साथ। अंडरस्टूड? सिंपल है बेटा। जहां हमने हैज टू और हैव टू यूज किया था, यानी कि जहां हैव टू यूज किया था उस जगह पे हम केवल वर्ब फर्स्ट यूज करेंगे, नो एस नो ईएस। अंडरस्टूड? एंड वेयर वी यूज्ड हैज टू, उस जगह पे हम कहां यूज कर देंगे, क्या यूज कर देंगे, सॉरी, वी विल यूज एस और ईएस इन सेंटेंस। सो दैट वी हैव टू चेक, वो हमें चेक करना है कि सेंटेंस में क्या है। ओके, ही है या फिर I, we, you, they, इनमें से कोई है। Let's make some example। अब हम कोई examples बनाते हैं कुछ by which we can clear these points। Like for example, और another hands, दूसरे आपको एक क्लू और देना चाहूंगा हिंदी में। If we talk about ता है and ती है, नॉट दिस पॉइंट, ता है और ती है हो, वहां हम क्या यूज करेंगे? देयर वी विल यूज एस एंड ईस विद वर्ब फर्स्ट। किसके साथ? वर्ब फर्स्ट के साथ एस और ईस यूज कर देंगे। कहां? व्हेन वी फाइंड ता है ती है इन एंड ऑफ सेंटेंस इन हिंदी। ओके, एक्सेप्ट इट, इसके अलावा अगर हम देखें जो रिमेनिंग जो बाकी बच गए हमारे, ये हमारा हिंदी का क्लू है। जो बाकी बचे हैं ताहम, तीहूं, ते हैं और ते हो। With these, what do we have to use? इनके साथ क्या यूज करेंगे? With these we have to use just only verb first. No s, no es. Okay, just only verb first we have to use if we get among these। इनमें से अगर हमें कुछ मिले तो हम verb first ही यूज करेंगे। ओके, और जब हमें ये मिल जाए then close your eyes and just use verb first plus s or es। Let's make some example। सबसे पहले हम ऊपर वाले के इन्हीं की डिस्कशन करेंगे। ओके, s और es कहाँ यूज करेंगे? अभी तक आप कंफ्यूज होंगे कि ता है ती है सर क्या बता रहे हैं बेटा। लेट्स मेक सम एग्जांपल लाइक खाता है, ओके, जाता है, अंडरस्टूड, खेलती है, अंडरस्टूड। अब हमारे पास क्या है? ता है, ती है। तो मैंने क्या बताया था, अगर हमें ता है और ती है मिले तो वर्ब फर्स्ट के साथ क्या लगा देना है? एस और ईएस लगा देना है। सो खाना क्या होता है? ईट। वेरी नाइस। ईट के साथ हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। ओके, ईट्स। ओके, और वह खाता है, he eats। अंडरस्टूड? ओके, जाता है, जाना क्या होता है? गो, और वो के साथ हम क्या लगा देंगे? goes। ओके, और वह जाता है, he goes। अंडरस्टूड? खेलती है, इट मींस सेम थिंग इज देयर। तो खेलती है तो क्या यूज करेंगे? एस और ईएस यूज करेंगे। खेलना क्या होता है बेटा? प्ले। वेरी नाइस, प्ले। ओके, और वो खेलती है, वह खेलती है, इट मींस शी प्लेस। शी प्लेस, सॉरी, अंडरस्टूड? सो
हैव यू गॉट दिस पॉइंट? ता है, ती है, क्या है, यानी कि अगर हमें हिंदी में ये पहचान मिले इन एंड ऑफ सेंटेंस ये मिले तो हमें क्या यूज करना है? एस और ई एस यूज करना है वर्ब फर्स्ट के साथ, वर्ब फर्स्ट के साथ। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? लेट्स मेक सम मोर एग्जांपल्स। अभी कुछ और सेंटेंसेस हम बना लेते हैं बाय विच वी कैन क्लियर दिस पॉइंट, जिससे कि हम ये पॉइंट क्लियर कर सकें। ओके, लेट्स मेक सम मोर एग्जांपल्स। पप्पू कार चलाता है। ओके, अब हमारे पास क्या है? वही आ गया बेटा, ता है। अंडरस्टूड? सिंपल। अब इसी की चीज से बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं? पप्पू की बात कर रहे हैं। सो वी विल राइट हियर पप्पू। चलाना क्या होता है? ड्राइव। गुड, वेरी नाइस। और ता है आ गया, जिसका मतलब हम ऐसा लगा देंगे। पप्पू ड्राइव्स क्या? कार। चलाना क्या होता है भाई? ड्राइव होता है। और चलाता क्या है? कार। पप्पू ड्राइव्स कार। अंडरस्टूड? सो दिस इज आवर कंप्लीट सेंटेंस। लेट्स मेक सम मोर एग्जांपल्स। और कुछ एग्जांपल बनाना चाहेंगे कि मम्मा कपड़े धोते हैं। अंडरस्टूड? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट मम्मा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर, ओके, मॉम। धोना क्या होता है? वॉश। मॉम वॉश, ईएस लगा देंगे बिकॉज इट इज देयर, सेम थिंग। मॉम वॉशेज क्लोथ्स। अंडरस्टूड? क्योंकि कपड़े एक नहीं है, plural है, in that case we have to use clothes. So I hope this point is clear. Very simple बेटा, और कुछ नहीं देखना है। हमें देखना है कि फर्स्ट लैंग्वेज में हमारा क्लू क्या है? ता है, it means s or es, verb first plus s or es we have to use. He है is there, verb first plus s or es we have to use. Okay? Except it, जैसे हमने गा के लिए क्या यूज किया था? will. For example, मैं जाऊंगा, I will go. Okay? मुझे जाना है, I have to go. मैं जा रहा हूँ, I am going. Okay? जाओ, go. मत जाओ, do not go. और वो जाता है, ता है आ गया है, तो इसका मतलब हमें क्या यूज करना है? He goes. Okay? पापा जाता है, पापा goes. टीचर पढ़ाता है, ता है आ गया। पढ़ाना क्या होता है बेटा? teach. और es और लगा देंगे, टीचर teaches. क्या पढ़ाता है? क्लास पढ़ाता है। सो कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा? टीचर टीचेस क्लास। अंडरस्टूड? मोर एग्जांपल और बताना चाहेंगे कि हाँ, ज्योति खाना बनाती है। ओके, बनाना क्या होता है? मेक। इफ यू टॉक अबाउट खाना पकाना क्या होता है? कुक। ओके, तो ज्योति कुक, ती है, इट मींस एस और एस लगा देंगे। ज्योति कुक्स क्या? खाना पकाती है। ज्योति कुक्स फूड। अंडरस्टूड? सो लाइक दिस सिंपली वी हैव टू सी, देखना है ता है, ती है वो, तो एस और एस लगा देंगे। किसके साथ? वर्ब फर्स्ट के साथ, जैसे मैंने आप सबको ये एग्जांपल्स बना के सिखाए हैं। सो बेटा डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, सो यू कैन जस्ट लिटिल बिट वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और रिवर्स कीजिए और इसको देखिए। अगर कुछ डाउट हो तो फिर भी आप अपना डाउट कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम उसको सॉल्यूशन कर सकें। ओके, एंड बी कनेक्टेड, कीप लर्निंग and not miss any class. If you have not subscribed this channel, please subscribe the channel and keep liking the videos. Be connected with these classes to utilize, to learn something and keep learning. That's all for today. I hope this point is clear to you all and have a good day. Thank you. Bye bye.